نواز شریف کی فیصل آباد آمد، سینیٹر طلال چودھری نے استقبال کیا۔ سابق سینیٹر فاروق خان کے گھر جا کر ان سے کزن اسرار منع خان کی وفات پر اظہار افسوس کیا۔ مرحوم کے اہل خانہ سے بھی تعزیت کا اظہار کیا۔ قائد مسلم لیگ نون نے چودھری شیر علی کی عیادت بھی کی، جلد صحت یابی کے لیے دعا کی گئی۔ اس موقع پر عابد شیر علی کہتے ہیں کہ امریکی پابندیاں تسلیم نہیں کریں گے، ڈکٹیشن برداشت نہیں کی جائے گی۔ تفصیلات عبدالرحمان کی اس رپورٹ میں دیکھیے۔ سابق وزیر اعظم کی آمد پر زرعی یونیورسٹی میں ہیلی پیڈ بنایا گیا تھا۔ میاں نواز شریف ہیلی کاپٹر سے اترے تو سینیٹر طلال چودھری نے ان کا استقبال کیا۔ سینیٹر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب بھی ہمراہ تھی۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر کیپٹن ریٹائرڈ ندیم ناصر اور سی پی او کامران عادل بھی موجود تھے۔ میاں نواز شریف سابق سینیٹر فاروق خان کے گھر پہنچے، جہاں لیگی رہنماؤں نے ان کا استقبال کیا۔ سابق سینیٹر فاروق خان سے ان کے کزن اسرار احمد منع خان کی وفات پر اظہار افسوس کیا۔ میاں نواز شریف کے بعد لیگی ٹکٹ ہولڈر پی پی 112 اسرار احمد منع خان مرحوم کے گھر پہنچے اور مرحوم کے اہل خانہ سے اظہار تعزیت کیا۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب، چودھری عابد شیر علی اور میاں طاہر جمیل بھی ان کے ہمراہ۔ میاں نواز شریف ہیلی کاپٹر سے واپسی کے لیے روانہ ہوئے۔ اس موقع پر چودھری عابد شیر علی کا سٹی 41 سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ لیگی قائد کی آمد پر حوصلہ افزا ہے، امریکہ کی جانب سے عائد پابندیوں کو تسلیم نہیں کرتے۔ انشاءاللہ کسی پابندی کو نہیں مانا جائے گا۔ پاکستان اپنے دفاع کا حق رکھتا ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم اپنے دفاع کے لیے کسی کی نہ ڈکٹیشن پہلے دی تھی ماضی میں، اس وقت جب نیوکلیر ٹیسٹ نواز شریف نے کیا تھا، پھر اللہ نے نون لیگ کا ہی موقع دیا ہے۔ پاکستان انشاءاللہ اپنے رائٹ کو پرزرو کرے۔ قائد مسلم لیگ نون نواز شریف نے فیصل آباد آمد پر چودھری شیر علی کی عیادت اور ان کی جلد صحت یابی کے لیے دعا بھی کی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ عبدالرحمان، سٹی 41 فیصل آباد۔ تو دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ نئے سال میں سانحہ 9 مئی کے 19 مجرموں کی سزا معاف کر دی گئی۔ معافی پانے والوں میں 4 کا تعلق فیصل آباد سے نکلا۔ مجرمان نے قانونی حق استعمال کرتے ہوئے نظر ثانی کی پیٹیشنز دائر کی تھیں۔ کورٹس آف اپیل نے انسانی بنیادوں پر 19 افراد کی رحم کی فریاد منظور کر لی۔ اس رپورٹ میں دیکھیے تفصیلات۔ سانحہ 9 مئی 2023 کے 19 مجرمان کی سزاؤں میں معافی کا اعلان۔ سانحہ 9 مئی کی سزاؤں پر عمل درآمد کے دوران 67 مجرمان نے قانونی حق استعمال کرتے ہوئے رحم اور معافی کی پٹیشنز دائر کی۔ 48 پٹیشنز کو قانونی کارروائی کے لیے کورٹس آف اپیل میں نظر ثانی کے لیے ارسال کیا گیا۔ 19 مجرمان کی پٹیشنز کو خالصتاً انسانی بنیادوں پر قانون کے مطابق منظور کر لیا گیا۔ فیصل آباد سے تعلق رکھنے والے جن مجرمان کو معافی ملی ان میں لئیق احمد، امجد علی، محمد سلمان اور محمد علی شامل ہیں۔ معافی پانے والے مجرمان کو ضابطے کی کارروائی مکمل ہونے کے بعد رہا کیا جا رہا ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق دیگر تمام مجرمان کے پاس بھی اپیل کرنے کے قانونی حقوق برقرار ہیں۔ اس سے قبل اپریل 2024 میں قانون کے مطابق انسانی ہمدردی کی بنیاد پر 20 مجرمان کی رہائی کا حکم صادر کیا گیا تھا۔ فیصل آباد کے رہائشی آبادی بڑھانے کے مشن پر گامزن ہو چکے ہیں۔ ہر ماہ 25,000 بچے پیدا ہوتے ہیں۔ محکمہ صحت کی گزشتہ سال کی جاری کردہ رپورٹ میں یہ انکشاف ہوا ہے۔ سی ای او ہیلتھ نے تمام ہسپتالوں سے 7 سال کا بچوں کی پیدائش کے اندراج کا ڈیٹا بھی طلب کر لیا ہے۔ تفصیلات عزادار حسین کی اس رپورٹ میں دیکھیے۔ محکمہ پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ کے متحد شعبوں کی سال 2024 کی کارکردگی رپورٹ جاری کر دی گئی۔ ضلع بھر میں 67 لاکھ مریضوں کا چھوٹی اور بڑی علاج گاہوں میں چیک اپ کیا گیا، جبکہ 1 لاکھ افراد کے آپریشن ہوئے۔ سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر اسفندیار کا کہنا ہے کہ روزانہ اوسط 800 بچے ضلع کی علاج گاہوں میں پیدا ہو رہے ہیں۔ تمام ہاسپٹلز میں کوئی 67 لاکھ کے قریب جو مریض ہیں وہ او پی ڈی ڈپارٹمنٹ میں ڈیل کی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کوئی 1.5 لاکھ مریض ایسے تھے جن کو داخل کر کے ان کا علاج کیا گیا۔ 1 لاکھ سے زائد مریضوں کے آپریشن کیے گئے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم لیبارٹری ٹیسٹوں کی بات کریں تو 2 لاکھ کے قریب مریض ایسے تھے کہ جن کے مختلف قسم کے لیبارٹری میں ٹیسٹ کیے گئے ہیں۔ اسی طرح کوئی 1 لاکھ کے قریب ہم نے مریضوں کے ایکس ریز کیے ہیں۔ بڑھتی آبادی کے پیش نظر سی ای او ہیلتھ نے ہسپتالوں کے ایم ایس اور دیگر متعلقہ محکموں کو مراسلہ جاری کر دیا۔ 7 سال کے دوران پیدا ہونے والے بچوں کا تحصیل لیول پر ریکارڈ حاصل کر کے محکمہ صحت کو جمع کرایا جائے گا۔ حاصل کردہ بچوں کے ریکارڈ کو دیکھتے ہوئے ویکسینیشن کا ہدف مقرر کیا جائے گا۔ گزشتہ سال ضلع بھر کے سرکاری ہسپتالوں میں 67 لاکھ مریض چیک اپ ہوئے ہیں۔ 275 فارمیسی اور میڈیکل سٹورز کے چالان کیے گئے۔ ڈینگی ایس او پیز کی خلاف ورزی پر 212 افراد پر مقدمہ درج کرایا گیا۔ 4,75,000 حاملہ خواتین کو تشنج سے بچاؤ کے حفاظتی ٹیکے لگائے گئے۔ اگر ہم ڈینگی کی بات کریں تو الحمدللہ فیصل آباد میں اس سال صرف 126 جو ہے
وہ کنفرم ڈینگی کے مریض رپورٹ ہوئے، جو کہ پچھلے سالوں کی نسبت اگر 3-4 سال کا جائزہ لیں تو ان میں سب سے کم ہے۔ سال 2024 کی جاری کردہ رپورٹ میں صحت میں بہتری سے متعلق منصوبے بھی متعارف کروائے گئے ہیں۔ کیمرامین ایمان علی کے ساتھ عزادار حسین، سٹی 41 فیصل آباد۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ موٹر وے پر دھند کے ڈیرے برقرار ہیں۔ M3 کو جڑاوالا سے لاہور تک ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ ترجمان موٹر وے پولیس کا کہنا ہے کہ غیر ضروری سفر اور تیز رفتاری سے اجتناب کیا جائے۔ ڈرائیور حضرات دوران ڈرائیونگ فوگ لائٹس کا استعمال یقینی بنائیں۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں کہ موٹر وے پر دھند کے ڈیرے برقرار ہیں۔ M3 کو جڑاوالا سے لاہور تک ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ ترجمان موٹر وے پولیس کا کہنا ہے کہ عوام غیر ضروری سفر اور تیز رفتاری سے پرہیز کریں۔ ڈرائیور حضرات دوران ڈرائیونگ فوگ لائٹس کا استعمال یقینی بنائیں۔ فیصل آباد ڈویژن پر دھند کا راج ہے۔ نظام زندگی مفلوج ہو کر رہ گئے ہیں۔ سورج ڈھلنے سے نکلنے تک موٹر ویز علاقہ غیر بن گئی۔ قومی شاہراہوں پر گاڑیوں کی آمد و رفت بھی شدید متاثر۔ تو دوسری جانب ٹرینوں کے انجن ٹھنڈے پڑنے پر منزل دور ہو گئی ہے۔ حد نکاح متاثر ہونے سے پروازیں بھی راستہ بھول گئی ہیں۔ آفت کے پڑاؤ نے مسافروں کے انتظار کی گاڑی لمبے روٹ پر ڈال دی ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ ٹھٹھرتے موسم کے دوران دھند نے بھی فیصل آباد ڈویژن کو لپیٹ میں لے لیا۔ صنعتی شہر میں صبح سویرے حد نکاح شدید متاثر ہوئی، جس کے باعث شہریوں نے گھروں میں پڑاؤ بڑھا دیا۔ جھنگ کے شہری بھی سرد ہواؤں کے تھپیڑوں اور دھند سے دب کر گھروں میں مقید ہو کر رہ گئے۔ توبہ ٹیک سنگھ اور گرد و نواح پر بھی دھند کا راج برقرار رہا۔ چنیوٹ شہر اور گرد و نواح کے علاقوں میں دھند کے باعث بادل منڈرائے۔ فیصل آباد میں دھند چھانے سے موٹر وے پر حد نکاح انتہائی کم ریکارڈ کی گئی۔ لاہور عبدالحکیم موٹر وے M3 رات اور صبح کے اوقات میں دھند کی وجہ سے بند رہی۔ موٹر وے M4 پنڈی بھٹیاں تا ملتان دھند کے باعث بند رکھی گئی۔ ترجمان موٹر وے پولیس نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ موٹر وے پر غیر ضروری سفر سے اجتناب۔ صبح کے اوقات میں دھند کے باعث ٹرینوں کی آمد و رفت بھی شدید متاثر ہوئی۔ کراچی سے براستہ فیصل آباد لالا موسیٰ جانے والی ملت ایکسپریس، فیصل آباد سے کراچی آنے والی سر سید ایکسپریس تاخیر کا شکار ہوئی۔ کراچی سے براستہ پشاور جانے والی رحمان بابا ایکسپریس، لاہور سے براستہ فیصل آباد کراچی جانے والی شالیمار ایکسپریس کئی گھنٹے تاخیر کے ساتھ منزل پر پہنچی۔ ٹرینوں کی تاخیر پریشان مسافر سردی میں ٹھٹھرتے رہے۔ ملک میں جاری دھند سے PIA کا فضائی آپریشن بھی متاثر ہوا ہے۔ لاہور، فیصل آباد، ملتان اور سیالکوٹ کے لیے PIA کی پروازیں متاثر ہوئیں۔ مسافر PIA کے کال سینٹر یا ویب سائٹ سے پرواز کی آمد و رفت کی معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ تو دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ شدید سردی غریبوں پر قہر ڈھانے لگی ہے۔ موسم کے تیور بدلتے ہی چنیوٹ میں کوئلے کی قیمت کو بھی آگ لگ گئی۔ بھوانا میں بھی گیس نایاب، LPG مہنگی، خشک لکڑی بھی شہری ڈھونڈتے رہ گئے۔ گیلی لکڑی کے ریٹ نے تو خریداروں کے دل جلا دیے ہیں۔ کہتے ہیں مہنگا ایندھن پہنچ سے باہر ہو چکا ہے، اب کیا خونے جگر جلائیں؟ تفصیلات اس رپورٹ میں پائیں۔ سردی کی شدت میں اضافے کے ساتھ ہی چنیوٹ میں کوئلے کی فی من قیمت 400 روپے بڑھ گئی۔ اوپن مارکیٹ میں تو کوئلے کے نرخ 30 روپے فی کلو تک بڑھا دیے گئے۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ اب کوئلہ خریدنا بھی مشکل ہو چکا۔ پہلے 120 روپے فی کلو ملتا تھا، اب 130 سے 150 روپے فی کلو تک ملتا ہے۔ غریب اس مہنگائی میں کیسے گزارا کریں؟ پہلے 120 روپے کا ملتا تھا، اب ادھر سے 130 روپے مل رہا ہے، تو کہیں اور سے لیں تو ان کی اپنی قیمتیں ہیں۔ کمی کا ہی کرنا ہے مطالبہ، بھی کمی ہو۔ مہنگائی ہے بھی ایسے ہی ہے، بھی جو مطالبہ جو ہو رہا ہے مہنگائی چل رہی ہے، اس کے خاص کمی ہونی چاہیے۔ شدید سردی سے بھوانا میں بھی چولہے ٹھنڈے پڑ گئے۔ سوئی گیس کی لوڈ شیڈنگ اور LPG کی عدم دستیابی نے لکڑی بھی مہنگی کر دی۔ LPG شہر میں 350 اور دیہی علاقوں میں 400 روپے فی کلو تک بکنے لگی۔ خشک لکڑی نام کی بھی دستیاب نہیں، گیلی لکڑی بھی 1300 روپے فی من ملنے لگی۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ آٹا، گھی اور چینی ہو بھی کھانا کیسے پکائیں، رات کو اکثر بھوکے ہی سونا پڑتا ہے۔ گیس کو ہم چھوڑ کے تو لکڑیاں لینے کے لیے آتے ہیں، تو لکڑیاں جو ہوتی ہیں وہ انتہائی گیلی ہوتی ہیں۔ خشک لکڑی جو ہے وہ بالکل نایاب ہو چکی ہے، اور اس وقت جو لکڑی موجود ہے یہاں پہ، اس کا ریٹ جو ہے وہ 1300 سے 1500 روپے من تک ہے، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے ہم لکڑیاں گیلی جلا کے جو وہ کھانا جو ہے ہم بر وقت نہیں بنا سکتے ہیں۔ دوسری طرف LPG کی طرف جائیں تو LPG کا جو ریٹ ہے وہ 350 روپے کلو بھوانا میں ہے، لیکن ارد گرد کے دیہاتوں میں اس کا ریٹ 400 سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ LPG کاغذوں میں سستی، مارکیٹ میں مہنگی ہو گئی۔ احمد پور سیال کے عوام LPG کی قیمت میں کمی سے محروم رہے۔ شہر میں LPG 320 روپے فی کلو بکنے لگی۔ متبادل ایندھن بھی شہریوں کی پہنچ میں نہ رہا۔ صارفین کا کہنا تھا کہ خون جما دینے
वाली सर्दी में LPG खरीदना मुश्किल हो गया है। बहुत मुश्किल जो है ना, चूल्हा जल रहा है, गरीब तो पीस रहा है बहुत ज्यादा। लकड़ी जो है ना वो 1400-1500 मन बेच रहे हैं। हर किसी का अपनी मर्जी से रेट लगाया हुआ है, कहीं 300 है तो कहीं 320 गैस है। तो यहाँ गरीब जो है ना, ज्यादा गरीब के ऊपर इतना बोझ पड़ रहा है कि वो खाने एक रोटी भी नहीं पका सकता वो। सार्फिन ने शदीद सर्दी के दौरान स्वीगैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग खत्म करने का मुतालबा कर दिया। बताएं कि नॉन फाइलर्स कवारों को शदीद झटका। FBR ने शादी का लड्डू भी कड़वा बना दिया। होटल या मार्की में शादी तकरीबात पर 2 गुना विद होल्डिंग टैक्स आयद करने की तजवीज़। म्यूजिक, कंसर्ट्स, पार्टीज, सेमिनार्स और दीगर तकरीबात पर भी नॉन फाइलर्स पर 20% विद होल्डिंग टैक्स लागू होगा। फैसलाबाद से उमैर अजमत की रिपोर्ट है। नॉन फाइलर कुंवारों के लिए बुरी खबर। FBR ने होटल और मार्की में शादी की तकरीबात की बुकिंग पर नॉन फाइलर्स के लिए विद होल्डिंग टैक्स 2 गुना करने की तजवीज दे दी। नॉन फाइलर्स के लिए शादी की तकरीब पर मजमूई बिल का 20% विद होल्डिंग टैक्स लागू होगा। फाइलर्स के लिए विद होल्डिंग टैक्स 10% मुकर्रर है। FBR ने तजावीज मंजूरी के लिए वफाकी हुकूमत को भिजवा रखी हैं। होटल मालिकान तकरीबात पर शहरियों से विद होल्डिंग टैक्स वसूल करके FBR को जमा करवाएंगे। हुकूमत ने तजवीज की मंजूरी दी तो नॉन फाइलर्स पर 2 गुना विद होल्डिंग टैक्स की शर्त आयद होगी। कैमरामैन इशफाक बुखारी के साथ उमैर अजमत, सिटी 41, फैसलाबाद। हुकूमत की आए रोज की पॉलिसी नामंजूर। टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स ने सनत की तरक्की के लिए कमर कस ली है। टेक्सटाइल कौंसिल मीटिंग में 5 से 10 साल मुतफिका पॉलिसी बनाने का फैसला। फैसलाबाद में एक्सपो सेंटर के क्याम के लिए कोशिशों पर भी इत्तफाक कर लिया गया है। तफसीलात बिलाल डोगर की इस रिपोर्ट में। फैसलाबाद में टेक्सटाइल की तरक्की और बहाली के लिए टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स यकजा हो गए। चेयरमैन कायमा कमेटी बिलाल जमील की सरपरस्ती में नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में टेक्सटाइल कौंसिल का इजलास मुनक्कद किया गया। रेक्टर NTU प्रोफेसर तनवीर हुसैन, सदर चैम्बर रेहान नसीम भरारा, CEO चनाब ग्रुप मियां लतीफ, CEO क्रीसेंट ग्रुप नवीद गुलजार, चेयरमैन PHMA हाजिर खान शरीक हुए। चेयरमैन एबूमा इमरान महमूद, साबिक चेयरमैन एबूमा आरिफ एहसान मलिक, चेयरमैन काउंसिल फॉर पावर लूम्स ओनर एसोसिएशन वहीद खालिक रामे ने भी शिरकत की। हमारा इंपोर्ट कंट्री खासतौर पर यूरोपीय यूनियन या US से जो डिमांडें आ रही हैं उनको हाउ टू मीट, क्योंकि वरना वो एक्सपोर्ट में हर्डल पैदा होंगे। फौरी तौर पे भी हैं मसाइल और कुछ अगले फ्यूचर के मसाइल भी हैं, वो अभी से शुरू होगा तो इंशाल्लाह। तो आज इस पे सारी बात हुई है। मीटिंग में 5 से 10 साल के लिए टेक्सटाइल पॉलिसी बनाने पर इत्तेफाक किया गया। शुरा ने फैसले में जल्द एक्सपो सेंटर की जगह हसूल पर इत्तेफाक किया। चेयरमैन कमेटी बिलाल जमील कहते हैं कि आलमी मार्केट के म्यार के मुताबिक उतरना जरूरी है। टेक्सटाइल पॉलिसी बनाएंगे लेकिन इसको रद्दी की टोकरी नहीं बनने देंगे। पहले भी टेक्सटाइल पॉलिसी यहाँ बनी लेकिन अमल दरामद नहीं हो सका। बिला वजह हम पॉलिसी दे के जाया नहीं करना चाहते। हम इनपुट उस वक्त देंगे जब तक हमें मिनिस्टर के साथ मीटिंग मिलेगी, देन हम देंगे। क्योंकि लास्ट जो टेक्सटाइल पॉलिसी थी अनफॉर्चुनेटली वो 95% कोलैप्स कर गई। तो अगर हमारी पॉलिसी डस्टबिन में ही जानी है तो फिर वाई वी आर वेस्टिंग आवर टाइम कि हम क्यों ज़ाया करें अपना वक्त। टेक्सटाइल कौंसिल मीटिंग में एक्सपो सेंटर को वक्त की जरूरत करार देते हुए फेडमिक बोर्ड से मंजूरी का फैसला भी किया गया। कैमरा टीम के हमरा बिलाल डोगर, सिटी 41, फैसलाबाद। और अब आपको बताएं कि मजदूर तबके को नए साल में भी इस्तेहसाल और इफलास का गम सताने लगा। हालात के पेश नज़र रोज दिहाड़ी लगती है या नौबत फाकों तक पहुंचेगी। मेहनत कश मौजूदा सूरत हाल से मायूस होने लगा। मज़ीद जानते हैं रिपोर्ट में। मेहनत कश नए साल में भी इस्तेहसाल और अफलास का शिकार। हालात का मारा मजदूर तबका 2025 में भी मायूसी से दो चार। मजदूरों का कहना था कहीं रोज गुजर जाते हैं, दिहाड़ी नहीं लगती। जो हालात पेश नजर हैं, मुश्किल है बेहतरी है। हुकूमत को चाहिए कि हमारे मुस्तकबिल के बारे में भी सोच विचार करे। दिहाड़ी 1500-1600 हमारी दिहाड़ी होनी चाहिए। ये दावे करे देता कोई नहीं है, सिर्फ 1000 या 1100 हमारी दिहाड़ी देते हैं। हमारे अखराजात ज्यादा हैं। उम्मीद नहीं है दिहाड़ी की। हमारे को 4-5 दिन हो गए, हमारी दिहाड़ी नहीं लग रही इधर। किसी की दिहाड़ी भी नहीं लग रही, काम ही नहीं है इधर। हुकूमत ने अगर बेरोजगारी के खिलाफ मुनज़्ज़म हिकमत अमली न अपनाई तो मजदूरों के लिए 2025 भी हलाकत खेज साबित हो सकता है। कैमरामैन इशफाक बुखारी के साथ मोहम्मद अली नारू, सिटी 41, फैसलाबाद। साल 2024 भी गुजर गया। मुल्क के तीसरे बड़े शहर फैसलाबाद के शहरियों के लिए सीवरेज और पीने के पानी के मसाइल हल न हो सके। डेप्यूटी कमिश्नर कहते हैं माजी को छोड़े मौजूदा हुकूमत ने अहले फैसलाबाद के लिए 11.5 अरब का जो तारीखी पैकेज दिया है,
इससे आने वाले 3 सालों में सीवरेज और वासों से मुतल्लिका मसाइल जरूर हल हो जाएंगे। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। 90 लाख की आबादी वाले पाकिस्तानी मैनचेस्टर के शहरी बुनियादी सहूलियात को तरस गए। शमशाबाद, इस्लामपुरा, सैफाबाद, जौहर कॉलोनी समेत शहर के 16 इलाके सीवरेज के गंभीर मसाइल से छुटकारा न पा सके। शहर के पोश इलाके भी सीवरेज मसाइल से घिरे रहे। 2024 में 93 मुकामात पर सीवरेज लाइनें बोसीदा होने के बायस बैठ गई थी। उसको प्रॉब्लम यह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो काफ़ी पुराना हो चुका है और एरियाज बहुत ज़्यादा उसके ऊपर आ गए हैं। इतनी कैपेसिटी नहीं है, बारिश का पानी नहीं निकलता क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर छोटा है और थोड़ी कैपेसिटी का है। बारिशें ज़्यादा होती हैं, अब मानसून में इतनी ज़्यादा बारिश होती है तो पानी नहीं निकलता। वासा शहरियों को साफ पानी फराहम न कर सका। 2024 में भी योमिया 67 मिलियन गैलन पानी की कमी का सामना है। वासा हुक्काम की जानिब से शहर को पानी की फराहमी के लिए फॉरेन फंडिंग से पानी की कमी को पूरा करने के लिए 4 मंसूबों पर काम जारी है। हुक्काम का कहना है कि 2025 के इख्तिताम तक फॉरेन फंडिंग प्रोजेक्ट मुकम्मल होने से 30 मिलियन गैलन योमिया साफ पानी सिस्टम में शामिल हो जाएगा। देखिए, ये इस शहर में जो सबसे बड़ा अगर मसला आप मेरे से पूछते हैं तो वो मैं कहूँगा सीवरेज का प्रॉब्लम था। लेकिन हमारी इस इलाके की लोगों की जो डिमांड थी उसके ऊपर चीफ मिनिस्टर साहबा ने हमारी जो है वो अप्रूवल दी है। कैबिनेट से हमारा केस अप्रूव हुआ है 10.8 बिलियन रुपीस का, तकरीबन 11 अरब रुपए का हमारा प्रोजेक्ट अप्रूव हो चुका है। अगरचा इस साल भी सीवरेज और वासा के मसाइल हल नहीं हो सके, ताहम फंड्स के इजरा के बाद आइंदा 3 सालों में फैसलाबाद में सीवरेज और साफ पानी के मसाइल हल होने का यकीन जरूर पैदा हुआ है। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ वकास अहमद बेग, सिटी 41, फैसलाबाद। और दूसरी जानिब अहले इक्तदार की मेहरबानियां। साल 2024 तरक्याती कामों के हवाले से झंग के शहरियों के लिए खासा बेहतर रहा। 10 अरब रुपए से जायद फंड बैनुल अजलाई सड़कों की तामीर, जबकि 3 अरब रुपए लिंक रोड और सूलिंग नालियों की तामीर और मुरम्मत के लिए मुहैया किए गए। मवेशी मंडी, खेल और दीगर मंसूबों पर काम भी शुरू होने से शहरियों के चेहरे खिल उठे। सड़कों की तामीर के हवाले से झंग के शहरी खुश। हुकूमत पंजाब की तरफ से मिलने वाले फंड से 66 किलोमीटर तवील शोरकोट रोड पर 3 अरब 49 करोड़ रुपए, मलुआना से बरेड़ी रोड पर 2 अरब 51 करोड़, 52 किलोमीटर तवील सरगोदा रोड पर 1 अरब 77 करोड़, 24 किलोमीटर लंबी टोबा रोड पर 90 करोड़, 32 किलोमीटर मुहित फैसलाबाद रोड पर 32 करोड़ रुपए लागत आएगी। 7.5 किलोमीटर रिंग रोड फेज 2 पर 13 करोड़ रुपए की लागत से काम शुरू हो चुका। 1 अरब 65 करोड़ रुपए की लागत से गोजरा रोड पहले ही मुकम्मल हो चुकी। का काम शुरू कर दिया, ठीक है। पहले काफी परेशान थे क्योंकि गट्टा मिट्टी आता था घरों में और दुकानों में काफी सारा यानी कि होता था, ठीक है। इसलिए सर हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं जो भी रोड के यानी कि अफसरान है। ये है कि थोड़ा सा पहले इनका पैच का थोड़ा मसला आया था, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह इनका फिट है, जबरदस्त काम कर रहे हैं। 3 दीगर मंसूबों में 3 अरब 50 करोड़ रुपए की लागत से कैटल मार्केट पर काम शुरू। जिला भर में सफाई के लिए 5 अरब 27 करोड़ रुपए के फंड्स मुख्तस किए गए। दूसरी तरफ सीवरेज का मेगा प्रोजेक्ट 2024 में भी मुकम्मल न होने पर शहरियों में मायूसी रही। 3 अरब से जायद लागत से बनने वाले डिस्पोजल स्टेशन और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के मंसूबों पर मुतलका महकमों ने रवायती सुस्ती। आगे बढ़ते हैं, अपने नाज़रीन को अपडेट करें। तालीमी इदारों को बेहतर बनाने के लिए कौमी खजाने के मुंह खोल दिए गए हैं। कमिश्नर फैसलाबाद डिवीजन ने झंग के सरकारी कॉलेजों की तामीर और मुरम्मत के लिए 1 करोड़ रुपए फंड्स की मंजूरी दे दी है। गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज 170 की बैरूनी दीवार की तामीर के लिए 3 करोड़ 41 लाख रुपए मुख्तस हुए हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। झंग के कॉलेजेस की तामीर और मुरम्मत के मंसूबे शुरू। कमिश्नर फैसलाबाद ने 4 करोड़ 84 लाख 32 हजार की मंजूरी दे दी। मंसूबे 2 माह से 1 साल में मुकम्मल होंगे। गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज 170 की बैरूनी दीवार की तामीर के लिए 3 करोड़ 41 लाख रुपए मुख्तस किए गए। ग्रेजुएट गर्ल्स कॉलेजेस झंग की बैरूनी दीवार के लिए 9 लाख 30 हजार मुख्तस। गवर्नमेंट कॉलेज शाहजुआना की मुरम्मत पर 6 लाख खर्चाए। ठेकेदारों को प्रोजेक्ट रवा माह ही तफवीज किए जाएंगे। डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस दफ्तर, ग्रेजुएट कॉलेज झंग और चक 170 कॉलेज की मुरम्मत के लिए 10 लाख रुपए जारी। गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज झंग और गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज गोजरा रोड की मुरम्मत के लिए भी 10 लाख रुपए मुख्तस किए गए। गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज शोरकोट और ग्रेजुएट कॉलेज गढ़ महाराजा की मुरम्मत के लिए 8 लाख रुपए खर्च होंगे। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल जेल फैसलाबाद का तामीराती काम इल्तवा का शिकार। जेलों के मल्टी स्टोरी बैरिक्स का सिर्फ 50% काम मुकम्मल हो चुका। मौजूदा माली साल की रिपोर्ट IG जेल खानाजात को इरसाल कर दी गई। माली साल 2024-25 की रिपोर्ट IG जेल खानाजात को इरसाल। डिस्ट्रिक्ट जेल की पुरानी बिल्डिंग गिराकर 100 कैदी सेंट्रल जेल मुंतकिल होंगे। IG जेल खानाजात से बिल्डिंग गिराने की मंजूरी मांग ली गई।
और दूसरी जानिब आपको बताएं कि तजावुजात माफिया के खिलाफ ऑपरेशन फैसलाबाद में ताजिर असिस्टेंट कमिश्नर से उलझ पड़े। पुलिस और दुकानदारों में हाथापाई, गिरफ्तार साथी भी छुड़ा लिया। लालिया में भी इंतजामिया और ताजिर आमने सामने आ गए। कार्य सरकार में मुदाखलत पर 3 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। म्यूनिसिपल कमेटी टोबा ने सदर बाजार में कार्रवाई के दौरान 70% आर्जी तजावुजात हटा दी। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। फैसलाबाद में जिले इंतजामिया और म्यूनिसिपल कारपोरेशन का तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। दुकानों के बाहर से सामान उठाने पर ताजरों और असिस्टेंट कमिश्नर सिटी में झगड़ा। एसी सिटी को बचाते पुलिस और दुकानदार गुत्थम गुत्था हो गए। पुलिस ने झगड़ा करने वाले दुकानदार को गिरफ्तार कर लिया। रीगल रोड के दुकानदारों ने साथी को पुलिस हिरासत से छुड़ाकर फरार करवा दी। टैक्सिंग के तंग बाजार कुशादा करने का मिशन असिस्टेंट कमिश्नर अली समीर की जेर निगरानी सदर बाजार से तजावुजात का खात्मा किया गया। म्यूनिसिपल कमेटी और जिला कौंसिल की टीमों ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि 70% आर्जी तजावुजात कायम थी। दुकानों के सामने से इजाफी फट्टे और स्टॉल्स खत्म करवा दिए। चीफ मिनिस्टर पंजाब का ये एक इनिशिएटिव भी है और एक डायरेक्शन भी है कि हमने हर किस्म की सॉफ्ट और परमानेंट जो है वो इंक्रोचमेंट शहर में ख़त्म करवानी है और ये ऑपरेशंस जो हैं वो पूरे पंजाब में चल रहे हैं और इसी सिलसिले में टोबा टैक्सिंग में भी ये हमने ऑपरेशन स्टार्ट किया है और ये जो इंक्रोचमेंट्स हैं हर किस्म के ये हम इंशाल्लाह ख़त्म करवाएंगे और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये हमारे साथ कोऑपरेट भी करेंगे और इस तरह की इंक्रोचमेंट्स को आगे से जो है वो मनाही भी की जाएगी। असिस्टेंट कमिश्नर लालिया शाजिया रहमान की जेर निगरानी भी नवाही इलाके कालोवाल में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। मुतअद्दिद तजावुजात मुस्मार कर दी गयी। ऑपरेशन में रुकावट डालने और स्टाफ के साथ हाथापाई के इल्जाम में 3 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। एफडीए की साल 9 की आगाज पर ही भरपूर कार्रवाई। सतियाना रोड पर कायम पैरामाउंट हाउसिंग और मॉडल सिटी की गैर कानूनी तामीरात मिसमार कर दी गई। ट्रैक्टर ट्रॉली समेत दीगर मशीनरी भी तहवील में ले ली। डेवलपर्स के खिलाफ चालान अदालत भिजवा दिए गए हैं। तफसीलात वकास बेग की इस रिपोर्ट में देखिए। डायरेक्टर जनरल फैसलाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी मोहम्मद आसिफ चौधरी की हिदायत पर गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों के खिलाफ ऑपरेशन साल 2025 में एफडीए इन्फोर्समेंट टीम ने पहली कार्रवाई अंजाम दी। सतियाना रोड पर गैर कानूनी कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई में अब जिले और रीजनल इंतजामिया भी मदद फराहम करेगी। इन्फोर्समेंट टीम ने सतियाना रोड पर कायम गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों, पैरामाउंट और मॉडल सिटी के दफातर सरबा मोहर किए। तामीराती और दफ्तरी सामान भी तहवील में ले लिया। एफडीए हुकाम का कहना था कि डेवलपर्स के खिलाफ चालान स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत ने भिजवा दिए हैं। गैर कानूनी हाउसिंग कॉलोनियों की तामीरात मस्मार की गई, जिसमें रोड स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिक और सीवरेज वर्क समेत दीगर तामीरात शामिल हैं। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ वकास अहमद बेग, सिटी 41 फैसलाबाद। सर्दी ने मफलर और गर्म टोपियां भी महंगी कर दी। फैसलाबाद के घंटा घर बाजार में मफलर्स और टोपियों की खरीदारी। मफलर 100 से 500 रुपए में दस्तयाब। चित्राली कैप 300 से 400 में बिकने लगी। शहरियों ने मफलर महंगे करार दे दिए। मज़ीद जानते हैं कामरान सईद की रिपोर्ट में। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ तो फैसलाबाद के शहरियों ने मुख्तलिफ अकसाम की गर्म टोपियां और मफलर्स खरीदने के लिए घंटा घर का रुख कर लिया। शहरी घंटा घर चौक के अतराफ में लगे स्टॉल से नित नए डिजाइन के मफलर्स और टोपियां खरीदते नजर आए। घंटा घर के करीब इन स्टॉल्स पर चित्राली टोपियों समेत दीगर गर्म टोपियां 300 से 400 रुपए में फरोख्त की जा रही हैं। चित्राली टोपी खरीदने वाले एक शहरी का कहना था कि ये सर्दी से बचाने के साथ साथ एक फैशन भी है। ये टोपी 400 की आ रहे थे, हमने 300 की ली है। हमारा कल्चर भी है ये और सर्दी से भी बचत हो जाती है। घंटा घर के कुर्बो जवार में मफलर्स के भी नित नए डिजाइन दस्तयाब हैं और हर मफलर की कीमत उसके मायार के मुताबिक है। कि इसमें बहुत मुख्तलिफ क्वालिटी होता है। एक आता है 1200 रुपए का, हमें खुद पड़ता है, उसमें हम 200-300 रुपए कमाएंगे। एक और क्वालिटी का है वो हम 150 रुपए का बेचता है, एक है 250 रुपए का बेचता है। इसमें बहुत सारे मुख्तलिफ क्वालिटी होते हैं, इसी वजह से जो है ना रेट इस तरह बन जाते हैं। चित्राली कैप और मफलर न सिर्फ हमें सर्दी से बचाते हैं बल्कि सदियों पर मुहित हमारी सकाफत का भी एक अहम हिस्सा है। कैमरामैन ईमान भट्टी के साथ कामरान सईद, सिटी 41 फैसलाबाद। फैसलाबाद के हॉकी खिलाड़ियों और शायकीन का दरीना ख्वाब पूरा। 17 करोड़ रुपए की लागत से हॉकी स्टेडियम की अपग्रेडेशन शुरू हो गई। पहले मरहले में तमाशाइयों के लिए बैठने के लिए जगह बनाई जाएगी, जबकि फ्लड लाइट्स की तंजीम और दीगर काम दूसरे मरहले में होंगे। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए।
बाद में अरसा दराज से हॉकी खिलाड़ी और शायकीन का मुतालबा हुक्काम बाला ने सुन लिया। हॉकी स्टेडियम पिच 2 की अपग्रेडेशन का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होने को लगा। पिच 2 पर काम का आगाज हो गया। पहले मरहले में तमाशाइयों के बैठने के लिए जगह बनाई जाएगी। दूसरे मरहले में फ्लड लाइट्स की तनसीब और दीगर बहाली के काम होंगे। महकमा खेल पंजाब ने हॉकी स्टेडियम पिच 2 की अपग्रेडेशन के लिए 17 करोड़ के फंड मुख्तस कर रखे हैं। स्टेडियम पिच 2 की अपग्रेडेशन से तमाशाइयों के बैठने की जगह समेत फ्लड लाइट हॉकी मैचेस का इनेकाद भी हो सकेगा। कैमरा टीम के साथ अरसलान दुरानी, सिटी 41 फैसला।